معاشی چیلنجز کے باوجود معیشت کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ ملک کے روشن اور خوشحال مستقبل کے لیے پرعزم ہے۔ معاشرے کے ہر طبقے کے تعاون سے ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ تاجر، وکلاء، کسان، انجینئر سمیت معاشرے کا ہر طبقہ پاکستان کے خواب کی تعبیر میں معاونت کر رہا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا ٹویٹ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے وزیر توانائی اور پیٹرولیم محمد علی کی ملاقات۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ اصلاحات ملکی معاشی استحکام اور ترقی کے لیے انتہائی کلیدی ہیں۔ نگران وزیر اعظم نگران وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بات چیت۔ پاکستان کے عوام خادم الحرمین الشریفین سے خاص عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ نگران وزیر داخلہ کی دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے سعودی سفیر کی کاوشوں کی تعریف۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی مزار قائد پر حاضری، پھول چڑھائے، فاتح خوانی کی۔ عوام کا احساس محرومی دور کرنا حکومت کا کام ہے، مشکلات کا مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ جمہوری تسلسل میں بہتری اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ حلقہ بندیوں کے بعد ہی ملک میں عام انتخابات ہوں گے۔ صادق سنجرانی کی میڈیا سے گفتگو۔ سندھ کی صوبائی نگران کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کابینہ کے ارکان سے حلف لیا۔ خیبر پختونخوا کی نگران کابینہ کی حلف برداری۔ گورنر حاجی غلام علی نے نگران کابینہ سے حلف لیا۔ نئی نگران کابینہ 9 وزراء، 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی پر مشتمل ہے۔ تقریب میں نگران وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ سپریم کورٹ کے نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جڑاوالا میں متاثرہ کرسچن کالونی کا دورہ۔ سانحے میں متاثر ہونے والے رہائشی علاقوں اور گرجا گھروں کا جائزہ لیا۔ متاثرہ مسیحی خاندانوں سے بھی ملاقات۔ افسوسناک واقعے پر دلی دکھ ہوا۔ متاثرین کے نقصانات کی ازالے کے لیے فوری اقدامات ضروری ہے۔ ملوث افراد کے افر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے بعد دریائے ستلج میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ گنڈا سنگھ کے مقام پر 2,78,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ کنگن پور کوٹھی فتح محمد کے مقام پر حفاظتی بند ٹوٹنے سے متعدد دیہات زیر آب۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا قصور کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ ریسکیو اور ریلیف کے کاموں پر بریفنگ۔ عوام کی محفوظ مقام پر منتقلی اور حفاظتی بند مضبوط بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ اور پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے وفد کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ۔ 9 مئی کو نوجوانوں کو بے راہ روی کی طرف راغب کیا گیا۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، ایسے واقعات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وفد کا سانحے میں ملوث عناصر کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور پروگرام نیوز شو ایٹ 6 میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ ناظرین، ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، تفصیلات شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ۔ اس بار ہمارے مقابل ایک طاقتور دشمن بھیجا گیا ہے۔ تم ہار چکے ہو۔ میں کبھی ہار نہیں مانتا۔ دیکھ لیں گے، آپ سب دیکھ لیں گے۔ ایک خفیہ پیغام کے ذریعے جنگ کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ تب ہوا جب گستاف ہماری قید میں تھا۔ ہم اسے کیسے روکیں گے؟ گستاف کے آدمیوں کو ڈھونڈ کر۔ عبدالحمید ایک بار پھر سے جیت گیا۔ ہم آپ کو نقشہ دے رہے ہیں، گزرگاہ کی تفصیلات کا مطالعہ کریں۔ ہمیں اس گزرگاہ کے نقشے کو حاصل کرنا ہوگا۔ اگر سلیم پاشاہ وہ نقشہ لے کر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ وہ غدار نہیں ہے۔ کون مر گیا ہے؟ گستاف۔ میں محل کو دھماکے سے اڑا دوں گا۔
चलिए देखते हैं कि सलीम पाशा का इरादा आखिर क्या है। रुक जाएं। ये मेरे आका का हुक्म है, मैं हुक्म जरूर मानूंगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि तमाम तर माशी चैलेंजेस के बावजूद इक़्तिसादी तरक्की के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। अपने मुआशरे के हर तबके के मतनौ ताउन से रोशन और खुशहाल मुस्तक़बिल का सफ़र तय करेंगे। तफसील जानिए शाहरुख शफी से। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वफाकी काबीना टीम के पहले ही इजलास में अपनी तरजीहात वाज़ेह कर दी कि मुल्क के मुआशी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम और तरक्की मौजूदा टीम की अहम तरजीह है। इस मकसद के हुसूल के लिए निगरान वज़ीर आज़म ने आला सतह खुसूसी कमेटी भी तश्कील दे दी। कमेटी में खजाना, तवानाई, तजारत और खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के हुक्काम शामिल हैं। कमेटी का मकसद मुल्क की मुआशी बेहतरी के लिए खुसूसी इक़दामात करना है। निगरान वज़ीर आज़म ने रियासत की सतह पर किए गए आलमी मुआहदों की पासदारी के हवाले से भी अपने अज़्म का इजहार किया। मुल्क के मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का क़याम अमल में लाया गया था, जिसके जरिए ज़राअत, IT और मादनियात के हवाले से उठाए गए इक़दामात को अब तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मुतल्लका इदारों की मुआवनत से इक़दामात किए जा रहे हैं। इस हवाले से अपने ट्वीट में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआशरे के हर तबके के ताउन से तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के ख्वाब को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि ताजर, वकला, किसान, इंजीनियर्स और फनकार गर्ज मुल्क के हर तबके का मुतनव्वे किरदार तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के ख्वाब की ताबीर में मुआवनत कर रहा है। इस मुतनव्वे ताउन के साथ कौम के लिए एक रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल का सफर जारी है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि तवानाई और बिजली शोबे के इस्तेहाल मुल्क की माशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए इंतहाई कलीदी हैं, इसलिए मुल्क में तवानाई और बिजली शोबे के इस्तेहालात पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। उन्होंने ये बात तवानाई, बिजली और पेट्रोलियम के निगरान वज़ीर मोहम्मद अली से गुफ्तगू में कही, जिन्होंने निगरान वज़ीर आज़म से इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने निगरान वज़ीर तवानाई, बिजली और पेट्रोलियम को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद देते हुए उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर फ़खर आलम इरफान ने मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने डॉक्टर फ़खर आलम इरफान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि वो अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से अंजाम देंगे। नाज़रीन, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने दीगर सेनेटर्स के हमरा मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी और सेनेटर्स के साथ मिलकर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क का जमहूरी तसलसल बेहतर हो रहा है, जिसमें आइंदा मज़ीद बेहतरी आएगी। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पाकिस्तानी कौम बहुत मजबूत है, मुश्किलात आती हैं लेकिन हमें मिलकर उनका मुकाबला करना है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। सादिक संजरानी ने कहा कि बलूचिस्तान एक बड़ा सूबा है, वहाँ की तरक्की के लिए वक्त दरकार होगा। चेयरमैन सेनेट ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए, जिनमें उन्होंने बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराजी अकीदत पेश किया। सिंध की 10 रुकनी निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया। सिंध के गवर्नर कामरान खट्टेसोरी ने उनसे हलफ लिया। गवर्नर हाउस कराची में होने वाली तकरीब हलफ बर्दारी में निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर समेत दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। हलफ उठाने वालों में ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, मोहम्मद यूनुस ढागा, मुबीन जमानी, साद खालिद नियाज, डॉक्टर जुनेद शाह, मिसेस राना हुसैन, मिस्टर ईश्वर लाल, अरशद वली मोहम्मद, उमर सोमर और खुदाबख्श मरी शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने काबीना अरकान से हल्फ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में निगरान वजीर आला आजम खान और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा समेत आला हुक्काम ने शिरकत की। निगरान सूबाई काबीना में सैयद मसूद, बैरिस्टर फिरोज काका खेल, जस्टिस रिटायर इरशाद कैसर, अहमद रसूल बंगर शामिल हैं। आसिफ रफीक, डॉक्टर नजीबुल्ला, मोहम्मद कासिम जान, जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह और सैयद आमिर अब्दुल्ला भी निगरान काबीना का हिस्सा हैं। डॉक्टर रियाज अनवर और डॉक्टर सरफराज शाह निगरान वज़ीर आला के मुशीर होंगे, जबकि जफरुल्लाह खान मुआवन खुसूसी के तौर पर फराइज अंजाम देंगे।
सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने निगरान वजीर दाखिला सरफराज अहमद बुख्ती से इस्लामाबाद में मुलाकात की और निगरान वजीर दाखिला को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में पाक सऊदी दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहिमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान वजीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन तारीखी, दरीना और बिरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के अवाम खादिमैन हरमैन शरीफैन से खास अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। निगरान वजीर दाखिला ने दोनों ब्रदर ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए सऊदी सफीर की काविशों को सराहा। निगरान वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात की, जिसमें सऊदी वफ्द के दौरे पाकिस्तान से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। निगरान वफाकी वजीर अनीक अहमद ने बताया कि वफ्द का दौरा पाकिस्तान तारीखी अहमियत का हामिल होगा। हज, उम्रा, रोड टू मक्का प्रोजेक्ट, मजहबी सियाहत के फरोग समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस्लामाबाद में निगरान वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद की ज़ेर सदारत हज इंतजामात पर जायजा इजलास हुआ। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर मजहबी उमूर ने कहा कि गुज़श्ता हज इंतजामात का बगौर जायजा लेकर मजीद बेहतरी लाई जाएगी और हज पॉलिसी की जल्द मंजूरी से इंतजामात में मजीद बेहतरी आएगी। इजलास को बताया गया कि हज 2023 के इंतजामात हर लिहाज से मिसाली रहे। हज अखराजात में बचत की रकम हजाज कराम को वापस की गई, जबकि तवील मुद्दती हज पॉलिसी लाने की तैयारी कर रहे हैं। इजलास में हज 2024 के लिए दरखास्तें जल्द तलब करने और आइंदा के लिए आज़मीन हज को अक़सात में रकम जमा कराने की तजवीज़ पर गौर किया गया। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने जड़ावाला दौरे के दौरान कहा कि मुतासरीन के नुकसानात के इजाले के लिए फौरी इक़दामात ज़रूरी हैं। मुतासरीन को यकीन दिलाता हूँ कि मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मसीही आबादी पर जुल्म और हमारी दीनी, आईनी और कानूनी जिम्मेदारी के मौजू पर अपने बयान में नामजद चीफ जस्टिस ने कहा है कि कुरान मजीद गिरजाघरों और दीगर इबादतगाहों के खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म देता है। उन्होंने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगम्बर ना मानने और उनसे अकीदत ना रखने वाला खुद को मुसलमान नहीं कहला सकता। गिरजाघरों पर हमला करने वालों ने कुरान मजीद के अहकामात की संगीन खिलाफ वर्जी की, जिसका कोई जवाब नहीं हो सकता। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि बेहंगम हुजूम ने मसीही बरादरी की इबादतगाहों और रिहाइशों पर हमला करके कायद आज़म की पाकिस्तान के गैर मुस्लिम शहरियों को दी गई जमानतों की भी नफी की। उनका मजीद कहना था कि दिल खराश वाकई में मुल्क के आईन और कानून को पामाल किया गया। पाकिस्तान के परचम का सफ़ेद रंग गैर मुस्लिम शहरियों का आकाज और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाता है। नामज़द चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी के मजहबी जज्बात को मजरूह करने पर 10 साल तक जुर्माने की सज़ा और जुर्माने की सज़ाएं हो सकती हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों को पहुँचने वाले नुकसानात का हर मुमकिन अज़ाला करना मुसलमानों का दीनी फरीज़ा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि इस्लाम किसी मजहब की तौहीन की इजाज़त नहीं देता और पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। जड़ावाला में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सानहे में होने वाले नुकसानात का तदारुक किया जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने कहा कि जड़ावाला में हमला मसीहियों पर नहीं, पाकिस्तान पर हुआ है। नाज़रीन, दरियाए सतलुज में इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और गंडा सिंह के मकाम पर तकरीबन 2,78,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। PDMA के मुताबिक आज से हेड सुलेमान की पर, जबकि 21 अगस्त से हेड इस्लाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। तर्जुमान आपाशी के मुताबिक कसूर और लाहौर कैनाल डिवीजन की तमाम टीमें इस वक्त दरियाए सतलुज पर काम कर रही हैं। PDMA ने तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया है और दरियाए सतलुज से मुल्हिका इलाकों में आवाम की नक्लो हमल महदूद करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। महकमा आबाशी के मुताबिक चूनिया, कंगनपुर, कोठी, फतेह मोहम्मद के मकाम पर दरिया सतलुज का हिफाजती बंद टूट गया है। बंद टूटने से मुतादिद इलाके ज़ेर आब आ गए हैं और पानी रिहायशी आबादियों में दाखिल हो गया है। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने कसूर के सैलाब इलाकों का दौरा किया, रेस्क्यू ऑपरेशन और रिलीफ सरगर्मियों का जायजा भी लिया। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी, जिसके मुताबिक पतन पोस्ट, चंदा सिंह, तलवार पोस्ट, भेकीवन, बाकर के, भिंडिया उस्मानवाला, रतने वाला, मंडी उस्मानवाला, कोटली फतेह मोहम्मद में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता दिन कसूर के सैलाबी इलाके से 5,578 लोगों का इनखला किया गया था। सैलाबी इलाके में अहम मकामात पर रेस्क्यू बोट के साथ खुसूसी पोस्टें भी बनाई गई हैं।
जिला कसूर की तहसील चूनिया में कंगनपुर कोठी फतेह मोहम्मद के मकाम पर दरिया सतलुज का हिफाजती बंद टूटे जाने के कई रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो गया है। दरिया सतलुज में कोठी फतेह मोहम्मद के मकाम पर 2,05,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है और पानी की सतह 24 फीट तक पहुंच चुकी है। तफसील बता रहे हैं सलमान यूसुफ। भारत ने कोंगा डैम से 1,41,000 क्यूसेक पानी जबकि बागड़ा डैम से 85,000 क्यूसेक पानी दरिया सतलुज में छोड़ दिया है। मजमूई तौर पर 2,30,000 क्यूसेक पानी का रेला पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है। जिला कसूर के कई सरहदी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। हम पाकिस्तान रेस्क्यू टीम लाहौर से आए हैं, तो रात 1 बजे से हमारा ऑपरेशन कंटिन्यूसली जारी है। रात 1 बजे हमने रिस्पॉन्ड किया था, हमें इत्तला मिली थी कि एक बांध टूट गया है। वहाँ से हमने तकरीबन 200 लोगों को इवैक्यूएट किया, जिनमें से खवातीन, बच्चे और कुछ मरीज भी थे। पेशेंट को हमने हॉस्पिटल शिफ्ट किया और कंटिन्यूसली हमारा ऑपरेशन जारी और सारी है। ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਲਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਵਾਮ ਦੀਆਂ ਵਾਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਰੈਸਕਿਊ 1122 ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਪਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲकुल ਨਾ ਬਾਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ कोठी फतेह मोहम्मद। कल मगरिब के बाद यहाँ पे इनका लोकल बेड़ा है, वो आ रहा था, उसमें लोड बहुत ज़्यादा था, गंदम और मकई लोड की थी और 50 से 60 लोग थे उसमें। तो हमारी बोट्स रेस्क्यू करके आ रही थी, जो ही हमने देखा है वो बेड़ा बैठ रहा था नीचे और हमारी बोट्स ने रिस्पांस किया है। अल्लाह का शुक्र है कि इनके 50 से 60 लोग सेफली हमने इवैक्यूएट किए हैं, लेकिन इसी दौरान उनकी एक छोटी कश्ती थी, वो उस बेड़े को बचाते हुए डूब गई। कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। हमारी 2 बोट्स उस ऑपरेशन में शामिल थी और अल्लाह का शुक्र है उन सारे लोगों को सेफली हमने एरिया से इवैक्यूएट कर लिया। महकमा NDMA ने दफा 144 का नफाज भी कर दिया है। महकमा NDMA के अलर्ट के मुताबिक दरिया सतलुज में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब भी मुतवक्को है। कोठी फतेह मोहम्मद जी तहसील चूनिया में हमारा मेन रिलीफ कैंप है। यहाँ पे सारे अलाइड डिपार्टमेंट, रेस्क्यू टीम्स सारी मौजूद हैं, लॉजिस्टिक के साथ साथ मेडिसिन सारी मौजूद हैं। इसके अलावा हमने 2 रिलीफ कैंप फर्दर भी इस्टेब्लिश किए हैं, एक मोकल में और एक गाड़ा सिंह में। महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से यहाँ कोठी फतेह मोहम्मद में एक फ्लड रिलीफ कैंप लगाया गया है, जिसमें अब तक तकरीबन 3,665 जानवरों को रेस्क्यू किया गया है। 20 अगस्त को यहाँ से 2,30,000 क्यूसेक पानी का रेला भी गुजरेगा। महकमा NDMA ने तहसील इंतजामिया चूनिया को हाई अलर्ट कर दिया है, जिसके बाद तहसील इंतजामिया चूनिया ने कोठी फतेह मोहम्मद के मुकाम पर रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए हैं। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 ने शहरियों की नकलो हरकत के लिए बोट सर्विसेज का भी आगाज कर दिया है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 24 फीट तक पहुंच गई है और इस वक्त पानी का अखराज 2,78,300 क्यूसेक है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद अशरफ, जो इस वक्त दरिया सतलुज पर मौजूद हैं। अशरफ, इस वक्त पानी की क्या सूरत हाल है? गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 24 फुट और अखराज 2,78,300 क्यूसेक है। सुलेमानकी के मुकाम पर पानी की आमद 80,200 क्यूसेक और अखराज 66,500 क्यूसेक है। किसी भी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू 1122 की तरफ से 9 मुख्तलिफ मुकामात पर रेस्क्यू पोस्टें कायम की गई हैं। हर सुलेमानकी के मुकाम पर बेस और मेडिकल कैंप कायम कर दिया गया है। 20 कश्तियों के साथ 150 जवान रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। अब तक 2000 से ज़ायद अफराद को मुख्तलिफ मुकामात से महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। दरिया सतलुज में पानी बहुत तेज़ी से आ गया है और सानू इंतज़ामिया ने किया है कि अपने माल और बच्चे और जो है ना माल मवेशी लेकर किसी महफूज जगह पर चले जाएं, और हम बिल्कुल महफूज जगह पर चले गए हैं। काफ़ी पानी आ गया है तो इंतजामिया ने सानू क्या है भी माल डंगर लेके बाल बच्चे तो महफूज जगह ते निकल जाओ। इस वक्त अटारी के मुकाम पर 1 लाख के करीब पानी का रेला गुजर रहा है और गंडा सिंह से 2 लाख से 2.5 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजरने की इतलात हैं। अटारी के मुकाम पर असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियाउल्लाह चौधरी की ज़ेरे निगरानी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऊंचे दर्जे के सैलाब के पेश नज़र ज़िला भर में एमरजेंसी का निफाज कर दिया गया है और तमाम सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। दीपालपुर के तमाम हस्पताल और डिस्पेंसरियों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। ज़िले इंतजामिया ने ऊंचे दर्जे के सैलाब के पेश नज़र दूसरे अजला से भी रेस्क्यू टीमों को कॉल कर लिया गया है। इसके साथ साथ पाक आर्मी की खिदमात हासिल करने के लिए हुकाम से रब्ता कर लिया गया है। ज़िले इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो फौरी तौर पर दरिया से नकल मकानी करके महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएं। मोहम्मद अशरफ, PTV न्यूज़, रिनाला खुर्द, उकाड़ा। नाज़रीन, भारत की जानिब से दरिया सतलुज में पानी छोड़े जाने से दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने लगी है। लोधरा के मकाम पर दरिया सतलुज में इस वक्त 42,000 क्यूसेक का पानी का रेला गुजर रहा है।
जिला इंतजामिया ने दरिया के किनारे आबाद बस्तियों के 60 घरों के 450 अफराद को फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल कर दिया है। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला डाहा जो इस वक्त सतलुज के किनारे मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी अब्दुल्ला, बताइएगा। जी बिल्कुल, भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए सतलुज में एक बार फिर पानी की सतह बुलंद होने लगी है। इस वक्त लोधरा के मकाम पर 42,000 क्यूसेक का पानी गुजर रहा है। मुमकिन सैलाब से मुतासर होने वाले गाँव विघामल, बस्ती मेहरान, शाहपुर, फुल, टिब्बी वड्डा, रामकली के रिहायशी लोगों को रिलीफ कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया है। साथ साथ मस्जिदों में ऐलान करके दरिया के नज़दीक मकीन लोगों को सैलाब के बारे में भी आगाह किया जा रहा है। ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से लोधरा में कायम 26 फ्लड रिलीफ कैंपों में कश्तियाँ, अद्वियात, खाने पीने की चीज़ें वाफिर मिकदार में मौजूद हैं और रेस्क्यू की टीमें दरिया के किनारे पर अलर्ट हैं। ज़िलाई इंतज़ामिया लोधरा के एहलकार शाहपुर, फुल, मौजा गोल, तहसील करोड़ पक्का के मकाम पर दरियाई कटाव और सैलाब के खदशा के पेश नज़र आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। अब तक ज़िलाई इंतज़ामिया लोधरा की जानिब से तकरीबन 60 घरों के 450 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन, दरिया सतलुज में भारत की जानिब से छोड़ा गया सैलाबी रेला तेजी से भावल नगर की तरफ बढ़ रहा है। भावल नगर के मकीनों की जान और माल को महफूज बनाने के लिए इंतजामिया ने करीबी आबादियों को खाली करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। तफसील बता रहे हैं राना फैसल रहमान जो इस वक्त दरियाई बेल्ट में मौजूद हैं। जी राना फैसल, आगाह कीजिएगा सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। दरियाए सतलुज में भारत की जानिब से सैलाबी रेला जो है एक बार फिर जो है छोड़ दिया गया है और इस दफ़ा जो सैलाबी रेला जो छोड़ा गया उसका जो लेवल जो है उसकी सतह जो है वो बहुत ज़्यादा है। तकरीबन बताया जाता है कि 2,25,661 क्यूसिक का रेला जो है वो भारत ने छोड़ा है, जो हेड गंगा सिंह से हेड सलमान की और बावल नगर और चिश्तियाँ से होता हुआ हेड इस्लाम की तरफ बढ़ेगा। इससे कबल जो पानी का रेला जो छोड़ा था उसने बावल नगर की 3 तहसीलों को शदीद मुतासर किया था, जिसमें मिंचनाबाद, बहावल नगर और चिश्तियाँ शामिल हैं। कई बस्तियों को जो है वो पानी ने मुतासर किया था। वसी पैमाने पर जो फसलें काश की थी उनको काफ़ी मुतासर किया था। इस बार जो है पानी का रेला जो है वो बावल नगर की तरफ बढ़ रहा है और हेड गंगा सिंह से जो है तकरीबन 2,16,000 का रेला जो है वो इस वक्त जो है वो चल रहा है। यहाँ पर मैं अपने नाज़रीन को ये बताना जो है इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ कि 1988 में भारत की जानिब से जो 6 लाख क्यूसिक का रेला जो है वो छोड़ा गया दरियाए सतलुज में, जिसने काफ़ी जो है वो परेशान किया था लोगों को, लेकिन ज़्यादा नुकसानात जो है वो उस वक्त नहीं हुए थे। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि उस वक्त आबादियाँ जो है वो बहुत कम थी दरियाई पट्टी में, लेकिन इस बार जो है आबादी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बस्तियाँ बहुत कायम हो चुकी हैं, लोग जो है काफ़ी यहाँ पर जो है रिहाइश पजीर हैं और इस बार जो रेला इससे कबल जो गुजरा था उसने भी काफ़ी नुकसान किया था लोगों का। और अब जो बड़ा रेला जो है वो बावल नगर की तरफ जो बढ़ रहा है, जो जैसे ही बावल नगर की हदूद में दाखिल होगा उसका जो है खदशा जाहिर किया जा रहा है कि नुकसानात जो है ज़्यादा होंगे, लेकिन ज़िला इंतजामिया जो है वो अलर्ट दिखाई दे रही है। खास करके यहाँ पर रेस्क्यू जांबाज जो हैं वो काफ़ी अलर्ट दिखाई दे रहे हैं और इससे कबल जो रेला जो गुजरा था उसमें तकरीबन 4,805 लोगों को उन्होंने रेस्क्यू किया था। इसके अलावा 9,000 से ज़ायद लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत फराहम की थी और अभी भी जो है तमाम जांबाज जो है वो अलर्ट दिखाई दे रहे हैं और लोगों की खिदमत के लिए पेश हैं। नाज़रीन, मंगला डैम में पानी 1,242 फीट तक भर चुका है। आम हालात में मंगला डैम में पानी की सतह को 1,242 फीट तक नहीं जाने दिया जाता, इसलिए पानी के अखराज को मंगला पावर हाउस के जरिए बढ़ा दिया गया है। तफसील बता रहे हैं नईम भट्टी। जी, इस वक्त मैं दरिया झेलम के किनारे मौजूद हूँ। मंगला डैम 1,242 फुट सतह समुंदर से बढ़ चुका है, जो कि आपाशी के ज़रिए फसलों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। जिस वक्त दरियाए झेलम के लिए पानी मंगला डैम से पावर हाउस के जरिए छोड़ा जाता है तो क्या सूरत हाल बनेगी? जी, मंगला डैम हमारी जो 100% रिजर्वायर कैपेसिटी के ऊपर फिल हो चुका है, 1,242 फीट तक भर चुका है, जो कि 7.35 मिलियन एकड़ फीट बनता है। इस वक्त जो इनफ्लोज़ हैं उतने ही आउटफ्लोज़ हैं। 24,311 क्यूसिक पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह दरिया झेलम जो है वो अपने नॉर्मल पोजीशन के ऊपर बह रहा है। 75,000 क्यूसिक तक हमारी कोई आबादी से अल्हम्दुलिल्लाह इफ़ेक्ट नहीं होती, लेकिन एहतियात को मद्देनज़र रखते हुए हमने तमाम अपने लो लाइंग एरियाज़ को
अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर चुके हैं। हमारे तमाम महकमे अलर्ट पे हैं, हमारी टीम्स डिप्लॉय हो चुकी हैं, बोट्स हमारी वल्नरेबल एरियाज़ पे पहुंच चुकी हैं। इसके बढ़ने के साथ साथ जो दूसरा एडवांटेज है वो हमारे पावर हाउस फंक्शनल हो जाते हैं। इस वक्त हमारा पावर हाउस जो है वो अपनी मुकम्मल कैपेसिटी के ऊपर वो भी चलना शुरू हो गया। किसी भी नागहानी सूरत से निपटने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रेस्क्यू, हमारे दीगर इदारे मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जी, मंगला डैम में पावर हाउस के जरिए बिजली की पैदावार 310 मेगावाट से बढ़कर 835 मेगावाट हो चुकी है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ज़माने की कसम खाकर फरमाया इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। उससे बाहर हैवानियत है, गुलाम बन जाते हैं। आपने ज़ुबान की बुनियाद पर एक बालादस्त तबका पैदा कर दिया है जो फ़िक्री तौर पर भले अपाहज हो। ये तसलसल है गुज़श्ता इन 70 सालों का। हम चूँकि मज़हब का जिक्र कर रहे हैं तो इखलाक की कितनी एग्जाम्पल दी। आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जगह बुलाते हैं मुसलमानों को, हिंदुओं को। हिंदू तो ऑलरेडी होती हैं, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्गा। दोस्तों में, नेबर्स में इस मोहब्बत को बांटने की कोशिश करते हैं। हमने देखा जिधर तुझको पाया उधर ए खुदा। तरह तरह की जगहों के खाने बनाने का शौक है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। हांडी के साथ आप तिल वाले कुलचे वगैरह यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वेरी नाइस। पीटीवी अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ रहा है आप ही का पसंदीदा शो। बना रहे हैं लाहौरी तवा चिकन। हम सब कुछ अच्छा अच्छा आपको बनाना सिखाते हैं ताकि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। तो इसको 15 मिनट्स लगेंगे तैयार होने में। फर्स्ट बॉयल आ जाएगा तो हम इसको स्लो फ्लेम पे लिड लगाकर रख देंगे। रिवायतों की लज्जत सीजन 2 सिर्फ और सिर्फ पीटीवी होम पर। वेलकम बैक नाज़रीन। और दरिया सतलुज में मुख्तलिफ मकामात पर पानी की सतह जो है वो बुलंद होती जा रही है। अगर हम मुख्तलिफ मकामात की बात करें तो उसमें गंडा सिंह का मकाम है जहाँ पर पानी की सतह 24 फीट तक पहुँच चुकी है और इसमें पानी के अखराज 2,78,300 क्यूसेक तक है। और साथ ही साथ हुकूमत की जानिब से तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। जिन जिन इलाकों में खासतौर पर दरिया सतलुज पर जिन मकामात पर सैलाब का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है वहाँ पर आस पास जितने भी इलाके हैं, जितने भी देहात हैं, वहाँ पर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से रोज़ वहाँ पर मकामात का दौरा भी किया गया है। वहाँ पर जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जो जारी है उस हवाले से हिदायत भी जारी की गई हैं कि जितने भी अफराद वहाँ पर आस पास इलाकों में आबाद हैं, जितने भी देहात हैं, वहाँ से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। और ये हमारे नुमाइंदगान जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों से हम बराह रास्त अपडेट भी कर रहे हैं, जैसे कि लोधरा दरिया सतलुज पर, हेड इस्लाम पर, हेड सलमान की पर जो सैलाब की सूरत हाल है, वहाँ पर दरिया सतलुज में पानी छोड़ने से पानी की सतह बुलंद हुई है। उस हवाले से जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं। तमाम तर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के साथ साथ निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से मुख्तलिफ मकामात का दौरा भी किया जा रहा है। दरिया के किनारे जितनी भी बस्तियां आबाद हैं उनको फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया जा रहा है। और निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कहा गया है कि जितने लोगों को मुंतकिल किया गया है उनको तमाम तर सहूलियात भी दी जाएँ और जैसे जैसे सूरत हाल बेहतर होगी उस हवाले से लोगों को अपडेट भी किया जा रहा है। बिल्कुल काशिफ, और इंतज़ामिया को भी मुतहरिक कर दिया गया है। जितने भी
قریبی علاقے ہیں جہاں جہاں پانی بھی داخل ہو گیا ہے، ایسی بھی ہمیں معلومات ہوئی ہیں، تو ان کو رہائشیوں کو جو ہے وہ محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے، جو فلڈ ریلیف کیمپس ہیں ان میں منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ انسانوں کی جانوں کو بھی بچایا جا سکے۔ اور جہاں ہم نے مختلف مقامات کی بات کی وہاں پر پانی کا بہاؤ جو ہے وہ بہت اونچے درجے کا ہو چکا ہے اور انتظامیہ کو متحرک کر دیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی ان مقامات کا دورہ کیا ہے۔ اور اگر ساتھ ہی ساتھ اگر بات کریں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ہیڈ سلمانکی پر 21 اگست سے ہیڈ اسلام پر اونچے درجے کے سیلاب کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم کی جانب سے جو الرٹ جاری کیا گیا ہے اور جو آبپاشی کے ترجمان ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا کہ قصور اور لاہور کینال ڈویژن کی تمام ٹیمیں اس وقت دریائے ستلج پر کام کر رہی ہیں اور پی ڈی ایم اے کے تمام متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور دریائے ستلج سے ملحق علاقوں میں عوام کو نقل و حمل کرنے پر اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر نے گورنر سندھ محمد کامران ٹیسوری سے ملاقات کی۔ ملاقات میں صوبائی امور سمیت اہم معاملات پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور میں ہونے والے اجلاس میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ایمرجنسی کے اپگریڈیشن کی منظوری دی گئی۔ پلان کے پہلے مرحلے میں ایمرجنسی کے گراؤنڈ فلور کو اپگریڈ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے نئے وارڈ بنانے کے لیے جلد جگہ مقصد کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ پی آئی سی کے بورڈ کا اجلاس جلد بلا کر ضروری فیصلے کیے جائیں۔ نئی تعمیرات کی بجائے پرانی عمارت کو بہتر بنانے کے لیے میسر وسائل کو استعمال میں لایا جائے۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں طبی سہولتوں کا جائزہ لیا، وارڈز کا معائنہ کیا اور پرائیویٹ کمروں کا بھی وزٹ کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مردان ڈومکی کی زیر صدارت امن و امان کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس کوئٹہ میں ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور آئی جی پولیس نے امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر قائم مقام وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ آئینی تقاضے کے عین مطابق وفاق اور صوبوں میں نگران حکومتیں قائم ہو گئی ہیں۔ پرامن ماحول میں صاف شفاف انتخابات کے انعقاد نگران حکومتوں کی اولین ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں پولیس لیویز اور قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے انتخابات کے لیے پرامن ماحول کا قیام یقینی بنائیں۔ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے مستعد، متحرک اور فعال کردار ادا کریں۔ قائم مقام وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ہدایت کی کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان معلومات کے تبادلے کا مؤثر نظام قائم کیا جائے۔ پولیس اور لیویز دہشت گردی کے ساتھ عمومی جرائم کے خاتمے کے ذریعے عوام میں احساس تحفظ پیدا کریں۔ نگراں وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق خلیل جارج اور ایکس سروس مین سوسائٹی کے وفد نے جناح ہاؤس کا دورہ کیا۔ وفد نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا دینے پر زور دیا۔ تفصیل رانا افتخار احمد سے۔ نگران وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق خلیل جارج نے جناح ہاؤس کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جناح ہاؤس اور جڑاں واقعات کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناح ہاؤس میں تباہی دیکھ کر سر شرم سے جھک گیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس کے گھر کو جس طرح جلایا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے۔ چاہے وہ جڑا والا میں ہو، چرچز کو جلایا جائے، چاہے وہ جناح ہاؤس کو جلایا جائے، چاہے وہ کسی مسجد، مندر، گردوارے یا ماں بارگاہ پر حملہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان پر حملہ ہے۔ جس طرح ہمارے ملک پاکستان کے نوجوانوں کے ذہنوں کی گرومنگ کی جا رہی ہے، جس طرح لڑایا جا رہا ہے، جس طرح اس شدت کو بڑھایا جا رہا ہے، یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے وفد نے بھی جناح ہاؤس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کو نوجوانوں کو بے روا روی کی جانب راغب کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے سے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن قومی املاک کو نقصان پہنچانا درست نہیں ہے۔ یہ جناح ہاؤس ہے، اس پہ یہ جو حملہ ہوا ہے، یہ اس کو دیکھ کے آپ کا دل دہل جاتا ہے۔ آئین اور قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ پروٹیسٹ بھی کریں، آپ دھرنا بھی دیں، لیکن آپ ملکی معاملات میں مخل نہیں ہو سکتے۔ گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ لاہور کی طالبات اور اساتذہ نے بھی جناح ہاؤس کا دورہ کیا اور اس تاریخی عمارت کی تباہی پر دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے ملک کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں گرفتار 80 ملزمان کے
जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से मुल्ज़िमान के जुडिशल रिमांड में तौसीह की इस्तदा की और अदालत को बताया कि मुल्ज़िमान जिना हाउस हमले और जलाओ घिराव में मुलव्विस हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमे का चालान तैयारी के मराहिल में है, जिसे अदालत में जल्द पेश किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद भुट्टर ने तमाम मुल्ज़िमान को दोबारा 2 सितंबर को पेश करने का हुक्म दिया है। नासिम, मुजफ्फराबाद में कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के ज़रिए एहतमाम छठा प्रोफेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कोर्स मुकम्मल करने वाले अफसरान की पासिंग आउट तकरीब का इन्नेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा कि कोई फ़र्द या इदारा अज़्म और जज्बे के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। अवामी खिदमत मुंतखब नुमाइंदों और अफसरान की तरजीह होती है। उन्होंने कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की खिदमत को सराहा और कहा कि इदारा अफसरान की पेशेवराना तरबियत के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। अफसरान आगे बढ़ें और मुल्क व कौम की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। मेहमान खुसूसी स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कोर्स मुकम्मल करने वाले अफसरान में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह के कन्वीनर महमूद अहमद साकर ने मकबूजा जम्मू कश्मीर और भारत की मुख्तलिफ जेलों में हुर्रियत रहनुमाओं की मुसलसल गैर कानूनी नजरबंदी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक महमूद अहमद साकर ने अपने बयान में कहा कि हुर्रियत रहनुमाओं को जेलों में कैद तन्हाई में रखा गया है। वो तिब्बी समेत तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम और मुतादिद बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि हुर्रियत रहनुमाओं की नजरबंदी को तूल देने के लिए उन्हें अदालतों में पेश नहीं किया जा रहा। उन्होंने आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से अपील की कि वो नजरबंद रहनुमाओं की हालत जार का जायजा लेने के लिए भारत और मकबूजा जम्मू कश्मीर की जेलों का दौरा करें और उनकी रिहाई के लिए भारत पर दबाव डालें। स्कर्दू में प्लास्टिक सर्जरी के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। फलाही तंजीम मारूफी फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम कैंप में माहिर सर्जन्स ने 100 से ज्यादा मरीजों के ऑपरेशन किए। तफसील बता रहे हैं कासिम नसीम। स्कर्दो में एक हफ्ते के लिए प्लास्टिक सर्जरी मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस इदारे के तहत पिछले 24 सालों से जर्नल मेडिकल कैंप जबकि 14 सालों से प्लास्टिक सर्जरी मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है। मौजूदा कैंप में मुल्क के नामवर प्लास्टिक सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुआज़म नज़ीर तारण और बरतानिया के माहिर प्लास्टिक सर्जन प्रोफेसर उमरेज खान की सरबराही में 16 रुकनी टीम मरीजों का इलाज और ऑपरेशन कर रही है। इस कैंप के दौरान 110 मरीजों की प्लास्टिक सर्जरी की गई। पैदाइशी तौर पर कटे हुए होंठ और तालू वाले मरीजों के साथ साथ यहाँ जले हुए मरीजों का महंगा तरीन इलाज और ऑपरेशन मुफ्त किया जा रहा है। जिन मरीजों का इस कैंप में इलाज मुमकिन नहीं, उनको लाहौर के बड़े अस्पतालों में मारूफी फाउंडेशन के खर्चे पर रेफर किया जाता है। ये हम 2009 से अल्हम्दुलिल्लाह हर साल आ रहे हैं। यहाँ पे हजारों मरीजों का अब तक इलाज कर चुके हैं। Whilst this is in a remote area with limited facilities in theatre, we are performing quite a lot of difficult surgeries, but necessary surgeries. And I just want to make sure people understand plastic surgery misconception is of cosmetic surgery. This is a functional surgery. बरतानिया अमेरिका से डॉक्टर भी हैं, तो इन्होंने कल ऑपरेशन किया। इंशाल्लाह ये बहुत बेहतर है। अभी तो मुझे गुंजाइश नहीं था, अभी इनकी बहुत बहुत मेहरबानी। तो प्लास्टिक सर्जरी का कैंप इंशाल्लाह आइंदा भी जारी रहेगा और हमारी कोशिश है आइंदा एक कैंप की बजाय हम 2 कैंप करेंगे इंशाल्लाह। इस नौयत के मेडिकल कैंप्स के इनेकाद से इन दूर दराज इलाकों के लोगों को घरों के दहलीज पर जदीद इलाज की सहूलतें मुयसर आएंगी। कासिम नसीम, PTV न्यूज़, करदों। नाजरीन, अब हम आपको जनूबी पंजाब के दूर उफ्तादा शहर बुरेवाला ले चलते हैं, जहां के पेट्रोल पंप पर ईंधन डालने से गैस संभालने तक के तमाम उमूर खवातीन एहसन तरीके से अंजाम दे रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं शिराज दुरानी। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों में ईंधन डालने का काम रिवायती तौर पर मर्दों के जिम्मे होता है, लेकिन बुरेवाला शहर के इस पंप पर काम करने वाली खवातीन सिनफे आहन होने का अमली मुजाहरा पेश कर रही है। ये खवातीन नोजल उतार कर टैंक में फ्यूल डालने, कैश संभालने और अकाउंट्स और ऑडिट के तमाम अमूर बखूबी अंजाम दे रही है। मैंने ICS किया हुआ है, मैं नेक्स्ट भी स्टडी स्टार्ट की हुई है और कंटिन्यू है। अल्लाह का शुक्र है, हम अपना कमा रहे हैं और अपना खा रहे हैं। हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, अपनी मेहनत करके अपना खुद कमाते हैं और माँ बाप का सहारा बने हुए हैं। 2 शिफ्टों में काम करने वाली इन खवातीन को मर्दों के मुकाबले में ज्यादा मुआवजा दिया जाता है। मालिक के मुताबिक खवातीन से काम लेने के 2 बुनियादी मकासद है। माली करप्शन की रोकथाम और महंगाई के इस दौर में खवातीन को अपने घर वालों की माली मुआवनत करना।
लड़कियों को बहुत फ़ायदा है, इनके घर चल रहे हैं, इनको अच्छा रोज़गार मिल रहा है। खवातीन के हकूक यकीनी बनाए जाए तो मुल्क की समाजी और मुआशी तरक्की में इनका किरदार वाज़ेह तौर पर सामने आ सकता है। हमारी बेटियों जैसी हैं और बड़ा अच्छा बिहेव करती हैं और ये अपने माँ बाप का सहारा बनी हुई हैं। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में मजमूई आबादी के 52% का फ़ाल होना हमारे मुआशरे की बेहतरी के लिए नेक शुगून है। खवातीन की जानिब से इस तरह रोजी रोटी कमाने से इनके घर में आसूदगी आएगी। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बुरेवाला। राज़िन K2 की तारीख में पहली बार रेस्क्यू ऑपरेशन करके मकामी कोहपेमाओं ने तारीख रकम कर दी। मजीद तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। हसन सतपारा रेस्क्यू टीम ने 7200 की बुलंदी से कोहपेमा की लाश रेस्क्यू कर ली। ये अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद रेस्क्यू ऑपरेशन है जो पाक फौज के ताउन से मुमकिन हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन 6 दिनों में मुकम्मल कर लिया गया। रेस्क्यू मिशन में मुकामी कोहपेमा सादिक सतपारा, अली मूसा, एम मुराद अली शिकरी, आबदैन शिकरी और आरिफ सतपारा शामिल थे। मुकामी कोहपेमा ने बगैर ऑक्सीजन के 7200 की बुलंदी का सफर तय किया। मरहूम अफगानी कोहपेमा की लाश को पहले बेस कैंप लाया गया। बेस कैंप से आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए लाश CMH मुंतकिल की गई, जहां से मरहूम कोहपेमा की लाश को अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू करने वाले कोहपेमाओं के टीम लीडर आबिद सतपारा का कहना था कि K2 की तारीख में आज तक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ। ये पहला मौका है कि हमने ये कर दिखाया है। पाक फौज के ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। कामयाबी पाक फौज और मरहूम हसन सतपारा के नाम करते हैं। ठट्टा की साहिली पट्टी कैटीबंदर में 20 साल बाद 8 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से बिजली बहाल कर दी गई है। 16 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन पर 200 पुल लगाकर 15 दिन में मुकम्मल किया गया है। तफसील बता रहे हैं मिर्जा हसन बेग। ये ठट्टा का सबसे पसमानदा इलाका केटी बंदर है, जो कि साहिल समंदर पे वाक़ है। लातादाद मसाइल का शिकार था। यहाँ पीने पानी की कमी थी, यहाँ ड्रेनेज का सिस्टम नहीं था और लाइट नहीं थी। MP आजी अली संदरारी साहब ने पहले पानी का मसला किया, उसके बाद ड्रेनेज का और अब एक लाइट का मसला। 20 साल से ये लोग लाइट से महरूम थे और उनकी तालीम भी बड़ा तबाह हो रहा था, इनका कारोबार भी बड़ा तबाह हो रहा था। MP हाजी अली संदरारी हैं 200 पोल 15 दिन रिकॉर्ड के अंदर लगा के आज ये 8 करोड़ 72 लाख की स्कीम के जरिए यहाँ लाइट मुहैया की है। इस इलाके का हक था, बनता था कि बड़ा पसमानदा था। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि लाइट जो थी वो हर इंसान की ज़रूरत भी होती है। तो हम लोगों ने 15 साल से बिल्कुल लाइट से हम कटे हुए थे। आज जो लाइट का हफ्ता रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शहरी जो हैं वो खुश हो रहे हैं। पीने का पानी का मसला 27 साल से था, वो भी मसला हल किया है। उसके बाद शहर में ड्रेनेज पेवर का काम हुआ है और बाकी जो बकाया काम रहा है उसका भी टेंडर हो गया है। यहाँ के लोगों में बड़ी खुशी पाई जाती है। वो कहते हैं कि इस तरह का MPA जो है हुकूमत सिंध का है, जिसने हमारे सारे मसाइल केटी बंदर के हल किए हैं। और साहिल इलाका जो कि बिल्कुल पसमानदा था, यहाँ कोई तवज्जो नहीं देता था, हाजी साहब की वजह से तमाम मसाइल हल हो गए और आज केटी बंदर पहली दफ़ा लाइट में चमकेगा। राज़ीन, आज दुनिया भर में इमदादी कारकुनों की खिदमात के एतराफ़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन की तारीख और अहमियत के बारे में देखते हैं शुमाइला शबीर की ये रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा ने 14 साल कबल 2009 में इमदादी कारकुनों के आलमी दिन मनाने का आगाज किया, जिसका मकसद दुनिया भर में हादसात और कुदरती आफात की सूरत में फौरी इमदाद फराहम करने वाले अफराद की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करना था। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया के 26 ममालिक में 23 करोड़ से ज्यादा अफराद को मुस्तकिल बुनियादों पर इंसानी हमदर्दी और मदद की जरूरत है। इस सूरत हाल में इमदादी कारकुन दुनिया भर में अहम किरदार अदा कर रही हैं। उन तमाम ह्यूमैनिटी वर्कर्स को अप्रिशिएट करें जिन्होंने दिन रात इंसानियत की खिदमत करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और इस रास्ते में कई ह्यूमैनिटी वर्कर्स ने अपनी जानों तक को कुर्बान कर दिया। हर साल आज के दिन इमदादी सरगर्मियों के शोबे से पेशावराना या रजाकाराना तौर पर मुंसलिक अफराद को दरपेश मसाइल के हल के लिए तजावीज के साथ साथ अमली इकदामात को भी हतमी शक्ल दी जाती है। इस साल इमदादी कारकुनों के दिन का मौजू चाहे कुछ भी हो जाए है। इस मौजू के तहत पाकिस्तान समेत अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक में कुदरती आफात और ग़िज़ाई किल्लत के शिकार अफराद के लिए नए इमदादी प्रोग्राम्स का भी आगाज किया जाएगा, ताकि इन मसाइल को इंसानी बहरान बनने से रोका जा सके। शुमाइला शबीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, भारतीय रियासत मणिपुर में तशद्दुद जलाओ घिराव का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जिला अखरल के कोकी अक्सरियती गाँव थवानी में 3 लाशें बरामद हुई हैं, जिससे गाँव में खौफ व दहशत फैल गया है। हलाक होने वाले तीनों अफराद विलेज गार्ड थे।
दूसरी जानिब चराचंदपुर और विशनपुर के इलाकों में भी हुजूम ने कुछ लोगों को निशाना बनाया। मणिपुर में रवां बरस 3 मई से जारी नस्ली तशद्दुद, जलाओ घिराव में अब तक 260 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 600 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, जबकि हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। मणिपुर में 10 कबायली अराकीन असम्बली ने 21 अगस्त से शुरू होने वाले रियासती असम्बली इजलास के बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। रेडिजेंस ट्राइबल लीडर्स फोरम के तर्जुमान ने बयान में कहा कि कबायली वज़रा, अराकीन और आम अफराद मेहती यानी कि हिंदू अक्सरियती दारुल-हुकूमत अम्पाल जाने से डरते हैं। कोकी, ज़ूमी और दीगर कबायली तबकात से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी वज़ीर या रुकने असम्बली सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अम्पाल जाने का ख्वाहिशमंद नहीं है, लिहाजा वो इजलास का बाइकआउट करेंगे। फैशिस्ट मोदी के हिंदुस्तान में अक़लियतों की इबादतगाहें इंतहा पसंदों के मुसलसल निशाने पर हैं। 1947 से अब तक 50,000 मसाजिद, 20,000 से ज़ायद चर्च और दीगर इबादतगाहें इंतहा पसंदों की नफरत का निशाना बन चुकी हैं। अमरीकी इदारा बराए मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और दलित हिंदुओं पर मुनज़्ज़म अंदाज से हमले किए जाते हैं। इंतहा पसंद हिंदू जमातें, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अक़लियतों की इबादतगाहों पर हमलों में पेश होती हैं। हिलाल जिहाद, बिल्डोज पॉलिसी, शहरियत और हिजाब पाबंदी जैसे कवानीन को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। मजहब तब्दीली से मुताल्लिक़ कवानीन को भी हिंदुओं और बुद्ध मजहब के पैरोकारों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। गैर मुल्की नशरियाती इदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 6 दिसंबर 1992 को एधोया में इंतहा पसंद हिंदुओं ने सदियों पुरानी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। इसके अलावा शाही ईदगाह मस्जिद, शमसी मस्जिद और ज्ञानोबी मस्जिद समेत दर्जनों इबादतगाहों पर हिंदू इंतहा पसंदों के दावे अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। 2017 में इंतहा पसंद हिंदुओं ने ताजमहल पर भी शिव मंदिर होने का दावा कर दिया था। 2008 में ओडिशा में इंतहा पसंद हिंदुओं ने 600 ईसाई गांव और 400 चर्च जला डाले थे। मणिपुर में हालिया फसादात के दौरान 400 ज़ायद चर्च नजर आतिश किए जा चुके हैं। 1983 में भारतीय फौज सिखों के मुक़द्दस मकाम गोल्डन टेम्पल अमृतसर पर भी टैंकों और तोपों समेत हमला करके इसकी बेहुरमती कर चुके हैं। चीन ने ताइवान के गिर्द फ़ज़ाई और बहरी मशक़ें शुरू कर दी। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ईस्टर्न थिएटर कमांड की जानिब से जारी वीडियो में लड़ाका तैयार और बहरी जंगी जहाज़ों को मशक़ें करते हुए देखा जा सकता है। मशक़ों का बुनियादी मकसद हकीकी जंगी हालात में लड़ने की सलाहियत को जांचना है। चीन की फ़ौज ने वाज़ेह किया है कि ये मशक़ें अलहदगी पसंद क़ुव्वतों के लिए एक संगीन इंतबा है। इन मशक़ों को ताइवान के नायब सदर विलियम लाई के हालिया दौरे अमरीका का रद्द-ए-अमल करार दिया जा रहा है। ताइवान ने चीन की फ़ौजी मशक़ों की मज़म्मत की है। बड़ाउसिन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें हमारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। आप मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।